خیرپور ناتھن شاہ میں پوریت مزاحمت تھلوں کی جانب سے تھلوں میں بنیادی سہولیات کے فقدان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تھلوں شہر کو بنیادی سہولیات دو کے نعرے بھی لگائے گئے۔ پوریت مزاحمت تھلوں کے نوجوانوں عبدالشکور بھگڑی، سجاد بھرگڑی اور نوید بھرگڑی کی طرف سے عملدار چوک سے نیشنل پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکال کر شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی میں عوام، ورکرز پارٹی اور ایس یو پی بھی شامل تھے اور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گاؤں تھلوں یونین کونسل ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود بھی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے۔ یونین کے فنڈز جو ڈی سی دادو کے بعد اسسٹنٹ کمشنر سے ہوتے ہوئے یو سی سیکریٹری تھلوں تک پہنچتے ہیں، وہ راستے میں ہی ہضم کر لیے جاتے ہیں۔ گاؤں تھلوں میں پی پی کے 13 سال کے دور حکومت میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ لوکل باڈی الیکشن میں منتخب ہونے والے نمائندگان نے بھی کوئی کام نہیں کروایا۔ انہوں نے ایم پی عبدالعزیز جنیجو، ایم این اے عرفان لغاری، ڈی سی دادو اور اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاؤں تھلوں کے بوائز پرائمری اسکول میں اساتذہ کی کمی کو ختم کیا جائے۔ گاؤں تھلوں کے سرکاری ہسپتال کو بھی سہولتیں دے کر اس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ اساں وٹि یو سی سیکریٹری جو مسلسل ॿाहिरियों माण्हू आहे शिकारपुर जो जन नालो आहे इमरान पठान ऐं ए सी सोनो खान जाजो यू सी हेड क्वार्टर असांजो ॻोठ हुजण खां बावजूद बि मुसलसल जेको आहे उहो नज़रअंदाज़ पियो थिए। उते जेका सिविल अस्पताल आहे उहा अपग्रेड कोन थी थिए। उस्तादनि जी स्कूलनि में मुसलसल खोट आहे। स्ट्रीट लाइटूं नथियूं लॻनि। उते जेको वॾो क़ब्रिस्तान ॻोठ जो मौजूदु आहे हुनखे चौधवारी नथी अचे ऐं उते जे शहर जी जेको आहे उहा सफ़ाई नथी थिए। सभु स्कीमूं सभु ॻाल्हियूं खातनि में आहिनि, पननि में आहिनि, पर अमल में का बि शइ कोन्हे का। असांजो मुतालबो आहे डी सी खां, ए सी खां ऐं सेक्रेटरी यू सी थले खां त इहे जेके तरक़ियाती कम आहिनि इहे सभु असांजा कराए वञनि, जीअं जेके इन्हनि जे ॻोठाणे जी बेचैनी आहे उहा ख़तमु थी वञे। خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف پہاڑی مہر عابد حسین سے۔ عید قربان نزدیک آتے ہی مویشی چور متحرک ہو گئے۔ چک نمبر 59 میں مہران کار نمبر 3360 پر سوار نامعلوم چور 45,000 کا بکرا لے اڑے۔ پولیس تھانہ صدر نے مقدمہ تک درج نہ کیا۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈی پی او اور آر پی او سے چوری، ڈکیتی اور راہزنی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک بھر میں بڑھتے ہوئے شوگر کے اعداد و شمار کی روک تھام اور عوام میں آگاہی مہم کے سلسلے میں بھور بھن میں پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ 7ویں مڈ سمر انڈوکرائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے نامور شوگر کے ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مری کے خوبصورت پرفضا مقام بھور بھن میں شوگر کے علاج، معالجے اور عوام میں آگاہی کے حوالے سے 3 روزہ 7ویں مڈ سمر کانفرنس کا آغاز پری کانفرنس ورکشاپ سے کیا گیا، جس میں ملک کے نامور ذیابیطس اور گردوں کے ماہرین نے شرکت کی۔ پسرور کے نواحی علاقہ جیتو گل میں 21 سالہ نوجوان کو نامعلوم افراد نے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پسرور میں سنگ دل ملزمان نے مقتول شاکر حسین کا گلا بھی کاٹ دیا۔ مقتول رات کو اپنی حویلی میں سونے گیا کہ اہل خانہ کو صبح اس کے قتل کی اطلاع ملی۔ تھانہ صدر پولیس نے اطلاع پر نعش کو سول ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ فندکوٹ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ضلع کشمور میں بدامنی کا راج برقرار ہے۔ قتل عام روز کا معمول بن گیا۔ کل ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہونے والے چاچڑ قبائل کے 3 افراد میں 2 کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایک کی نعش اب تک ڈاکوؤں کے چنگل میں ہے اور ابھی تک پولیس نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ اب رخ کریں گے گیمبر کا۔ خبر شامل کرتے چلیں ہمارے نمائندے عابد فریدی سے۔ اوکاڑا کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی تیاریاں زور و شور پر۔ گیمبر کی سیاسی اور سماجی شخصیات رانا امداد حسین نے کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3 سے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر رانا امداد حسین نے کہا کہ وارڈ نمبر 3 کے حلقے کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے۔ خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کا 5واں ہفتہ 5 جولائی سے شروع ہوگا۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے
خصوصی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر سمیت ڈویژن بھر کے افسران نے خوب شرکت کی۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ 5 جولائی سے مہم کا 5ویں ہفتے کی سرگرمیاں شروع کی جائیں گی، جس میں عید الاضحیٰ کے لیے خصوصی مہم بھی چلائی جائے گی۔ چشتیاں چک نمبر 11 فورٹ وابستی سکندر منشی والا میں سرکاری زمینوں اور غریب لوگوں کی انتقال شدہ زمین پر لینڈ مافیا سرگرم۔ گروپ کے خلاف بستی سکندر منشی والا کی عوام سراپا احتجاج۔ لینڈ مافیا سرگرم گروپ کی وجہ سے ڈھڈی پلوتا خاندان اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ ڈھڈی پلوتا خاندان کو اپنے انتقال شدہ رقبے پر جانے سے روک دیا گیا۔ گھروں سے باہر نکلتے ہی اسلحہ تان لیا جاتا ہے۔ ڈھڈی پلوتا خاندان کو بچوں سمیت ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس خاندان نے میڈیا کو اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ عرصہ 23 سال سے ہم اس زمین پر کاشت کر رہے ہیں اور اب چودھری عابد ہارون آباد والے نے ہم سب بھائیوں کو اپنے غنڈے اور بدماش لوگوں اور اپنے ٹھیکیدار وہاں پر رہائش پذیر محمد بخش جویا، افضل جویا، اللہ دتا مستری اور کچھ نامعلوم غنڈے وغیرہ کی مدد سے سرکاری اراضی پر قبضہ کروا رکھا ہے۔ لینڈ مافیا گروپ ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی محمد بخش جویا، اللہ دتا مستری، افضل جویا وغیرہ نے گنڈے بدماش منگوا کر جن کو چودھری عابد کی پشت پناہی حاصل ہے، اسلحے سے لیس ہماری زمین پر اور سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ سرکاری اراضی جو روڈ کے ساتھ ہے، اس پر اس قبضہ مافیا نے اسلحے کے زور پر قبضہ کر کے دکانوں کی تعمیر شروع کی ہوئی ہے۔ ہماری مالکیتی دکان پر بھی یہ لینڈ مافیا اسلحے کے زور پر قبضے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ لینڈ مافیا گروپ میں چودھری عابد، محمد بخش جویا، اللہ دتا مستری، افضل جویا وغیرہ شامل ہیں۔ ہم انتہائی غریب لوگ ہیں۔ ہم سب بھائیوں نے مل کر اپنے جانور اور بیویوں کے زیور اور گھر کی قیمتی چیزیں بیچ کر یہ رقبہ خریدا تھا۔ اس پر ہی ہم کاشت وغیرہ کر کے ہم سب بھائی اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ہم سب بھائیوں کو اپنے رقبے پر نہیں آنے دیا جا رہا۔ ہماری فصل تباہ ہو رہی ہے۔ ہمارا کوئی آدمی اگر روڈ سے بھی گزرتا ہے تو یہ لوگ ہم پر اسلحہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری جناب وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، DIG بہاولپور، DPO بہاول نگر، DC بہاول نگر، AC تحصیل چشتیاں اور تحصیلدار چشتیاں اور DSP چشتیاں اور متعلقہ تھانے کے SHO سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را لینڈ مافیا گروپ سے ہم سب بھائیوں کو ہمارے بیوی بچوں سمیت فوراً تحفظ دیا جائے، نہ تو یہ لوگ ہم کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہمارے انتقال شدہ رقبے پر قابض ہو کر ہمیں یہاں سے اسلحے کے زور پر بھگانے کی پوری کوشش میں ہیں۔ رائشی 11 ਚੱਕ ਫੋੜਵਾ ਦੇ ਆਂ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਂ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ, ਮੈਂ ਨਾਕਰੇ में ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਹੀ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਜੇ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਆਖਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਵਣ ਜੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਗੂਹੇ ਸਕੂਲ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਖੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 5ਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਬਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਈ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਦਾਈ ਨਾ ਕਦਾਈ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੱਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਦਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦਵਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਕਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਨੇ। ਵੀ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਰਨੇ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ 5 ਰਾਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੇ ਚਾਸੇ ਪਏ, ਅਸਾਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਘੁਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਕ ਲਾਈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇ ਪਿੱਛੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਨ ਪੈ ਜੀ। ਆਬਦ ਚੌਧਰੀ ਆਬਦ ਦੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। 15 ਤੋਂ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਛਡਵਾ ਲਈ ਸਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਬਦ ਚੌਧਰੀ ਨਪਾਈ ਖੜਾ ਜੀ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। खबर शामिल करते हैं और न्यूज़ के नुमाइंदे परवेज इकबाल के मुताबिक केमिस्ट एसोसिएशन डिवीज़न बहावलपुर का हंगामी इजलास ज़ेर सदारत हाफिज़ इनामुल हक गोराइया मुनक्किद हुआ, जिसमें बहावलपुर के तीनों अजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरी समेत ज़िला लोधरा के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत की जानिब से लगाए गए जालिमाना टैक्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई कि हुकूमत एडवांस टैक्स पर चीज़ मेडिसन पर फिलफौर खत्म करे। केमिस्ट भाइयों का मुआशी कत्ल हरगिज़ भी कबूल नहीं किया जाएगा। केमिस्ट बरादरी ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मीडिया नुमाइंदगान के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि अगर हुकूमत की जानिब लगाया गया एडवांस टैक्स वापस ना लिया गया तो शटर डाउन किया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर लोधरा डिस्ट्रिक्ट समेत डिवीज़न बहावलपुर की तमाम कैबिनेट ने इत्तफाक़े राय हाफिज़ इनामुल हक गोराइया पर मुकम्मल एतमाद करते हुए एक बार फिर सदर मुंतखब कर दिया और जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसिफ जावेद को मुंतखब किया। इजलास के इख्तिताम पर ज़िलाई सदर केमिस्ट एसोसिएशन मिर्ज़ा इमरान बेग, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज महमूद ने अपने दीगर ओहदेदारान मियाँ इमरान हनीफ, सदर फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन चिश्तियाँ जावेद मजीद, सदर केमिस्ट एसोसिएशन फ़कीर वाली, जनरल सेक्रेटरी मुख्तियार अहमद ने हाफिज़ इनामुल हक गोराइया को डिविजनल सदर बनने पर मुबारकबाद दी। हूँ कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स विंग के साथ मीटिंग करें और उनको ये पाबंद करें कि जो भी फैसला रिटेलर करेगी वो उसके पाबंद होंगे, क्योंकि 1500 रिटेलर है हर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो 40 से 50 हैं, ठीक है। और 1500 पावर वाले जो लोग हैं उनके ताबे होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बैंक को, क्योंकि उनके साथ उन्होंने चलना है। जो भी अपना फैसला लिख के डिस्ट्रीब्यूशन बैंक के चेयरमैन को देंगे वो फौरन उस पर अमल करवाने का पाबंद होगा। और इसका लेटर हम इशू कर देते हैं, क्योंकि बहावलपुर में हमने मिसाल कायम कर दी है ये कि जो बात हम जो फैसला करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर उसको ओबे करने का पाबंद है कि हमने उनके साथ मिलके चलना है। और जो बंदा जो गद्दार है जिसका हम लिख के देंगे कि ये बंदा जो है ना गद्दार है, इसकी सप्लाई रोक दी जाए और तमाम डिस्ट्रीब्यूटर पाबंद होंगे, उस बंदे के साथ काम नहीं करेंगे। देती हैं कि वो जो हमारी इनवाइस है वो टैक्स के साथ ना काटे, वो बगैर टैक्स के हमारी इनवाइस काटे। जब तक हमारा यूनियन का कोई फैसला दोबारा नहीं, हमारी मुशावरतें जारी हैं। जब पाकिस्तान लेवल पर हमारी ये डिसीजन हो जाएगा उसके बाद वो टैक्स का वो लगाने के फैसला होगा, जो भी फैसला होगा इसके ऊपर हम आज ये सर्कुलर बना के दे रहे हैं। आप किसी को कोई बहावलपुर की बात करें, आप लोधरा को भी साथ अटैच लोधरा इस्लामाबाद शदरा पॉइंट्स पर टिकटॉक के हवाले से बातचीत। टिकटॉक पाकिस्तान में बंद कर दी गई, इस हवाले से खुशगवार माहौल में टिकटॉकर से गपशप हुई।
VPN जिंदाबाद। थैंक यू। आपका नाम? जिया। जिया। तो जिया आप भी टिकटॉक बनाती हैं, तो कैसा लग रहा है टिकटॉक बैन हो गया तो? अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग फिर भी बना लेते हैं VPN से। अच्छा। और यहाँ आज ऐसे ही मीटअप करने सबसे। थैंक यू। अब किसी और का लेते हैं। कनेक्ट किए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमल खान। अच्छा कमल खान, अब टिकटॉक बंद हो गया है, तो आपका दिन कैसे गुजरता है? मैं अब आपको सच्ची बात बताऊं, VPN डाउनलोड करो और बस टिकटॉक चलाओ। अच्छा, तो आप दिन में कितनी वीडियोस बनाती हैं? मैं ज़्यादा नहीं बनाती, बस एक दो ही। अच्छा, तो यहाँ पहले शुरू जब मैंने टिकटॉक पे आई थी तब मैं ज़्यादा बनाती थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम बनाते हैं लाइव अच्छा, तो कैसा जा रहा है आपका टिकटॉक? तो ठीक जा रहा है, अभी तो बंद हो गया है। अच्छा, तो क्या कहेंगे ये टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए। कभी शोर हाईकोर्ट बंद कर दिए, कभी शोर हाईकोर्ट बंद कर दिया, अब सिंह में चलाए एक ड्राम है, एक वीक का मिलता है, फिर बंद कर दिया। इसको ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे जो टिकटॉकर्स है उनके लिए तो गलत है, उनके लिए गलत है कि नहीं? अब ये बताएं कि अब जैसे उस टिकटॉकर्स को बंद टिकटॉक को बंद किया गया और मौका ये इख्तियार किया गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फारशी है, तो इस बारे में आप वो तो बिल्कुल राइट है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें जो हाल है उसको बैन करना चाहिए। जो ऐसी वीडियोस बना रहा है वो बैन होनी चाहिए, क्विक बैन करना चाहिए। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला तारिक है जी, निक नेम बबलू है। अच्छा जी, बबलू साहब आपका तो इस बारे में मशहूर है कि आप बड़े शेर और शायरी करते हैं, तो आज कोई शेर हो जाए? तो ये है कि जो जितने भी बेफाल लोग हैं उनकी नज़र है चंगा कीते ही जड़ा छड़ देते ही, चंगा कीते ही जड़ा छड़ देते ही, मैं भी जेन तू कट के सोनावा नाले ला दिल दी तख्ती तू तेरा ना कट के सोनावा, रब दूर रखे तेरे जो मुनाफा तू ते ही लाज में रट के सोनावा, मसा छुट्टी है जान तेरे जो बदनस रह तू कस में डट के सोनावा। चलो चली चलें। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर भट्ट। अच्छा आमिर भट्ट साहब, आप टिकटॉक बनाते हैं? जी मैं बनाता हूँ टिकटॉक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल जो टिकटॉक बैन हो गया है, इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? ये जो आजकल लड़कियाँ बना रही हैं ना, बहुत गंदी फिल्में बना रही है, टिकटॉक बना रही हैं, यकीन करें वो देखने को भी दिल करता है और ऐसी भी बातें करती है तो खुद भी शर्म आती है। अगर टिकटॉक बनी है तो आप इंजॉय करें उससे, कि क्यों वैशिप करते हो। मैंने कई बार देखा है मियाँ और बीवी भी बना रहे होते हैं, यार थोड़ी सी उनको शर्म होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई बंदा गंदी फिल्में बनाता है और गंदी टिकटॉक बनाता है तो आप उनके पर्चा दें, मैं तो भैया कहता हूँ, और जो अच्छे बनाते हैं उनके साथ आप अच्छा करें। ओके चलें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? किरण अब्बासी। अच्छा जी, किरण अब्बासी साहिबा, अब आप ये बताएं कि टिकटॉक जो बैन हुआ है उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? इन्होंने तो वो तो बैन इसलिए किया कि फहाशी ज़्यादा फैल गई थी, लेकिन ये देखा जाए कि हर ऐप जो है स्नैक जैसे है उसमें भी फहाशी है। फहाशी किस जगह पे नहीं है, किस ऐप पे नहीं है, हर जगह पे फहाशी है। लेकिन ये कि टिकटॉक ही क्यों बैन किया जाए, इन्होंने उनको बैन नहीं, अगर बैन करना था वीगो लाइव बैन करनी थी, स्नैक ऐप बैन करना था, और काफ़ी ऐप हैं वो बैन करने थे, जैसे लाइकी होगी और चीज़ें भी। तो इस चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं हूँ कि ये टिकटॉक बैन है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि टिकटॉक को ओपन होना चाहिए? जी बिल्कुल ओपन होना चाहिए। टिकटॉक ऐप को बहुत अच्छा ऐप है, एंजॉय होता है, काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता था, लेकिन हुकूमत के आगे इंसान क्या करे। ओके जी, थैंक यू सो मच। चलें। आपका नाम? सॉरी, हसन कियानी। अच्छा हसन कियानी से भी टिकटॉक बैन हो गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए था, इसका तो मतलब और भी ऐप्स हैं, लाइकी है, मतलब और काफ़ी स्नैक चैट है, उनको होना चाहिए। तो अब ये जिसमें फहाशी है उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा फहाशी है तो उसको बंद होना चाहिए, तो क्या ये आपको क्या लगता है कि सारी टिकटॉक पे फहाशी है या कुछ लोग और भी ऐप्स पे हैं, और भी ऐप्स फ्री।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ऑन न्यूज़ से बात कर रही हूँ। अभी मैंने बहुत सारे टिकटॉकर्स का मौक़िफ़ लिया, उनको छोटी छोटी सी बातें पूछी, उनसे पूछा कि उनका टिकटॉक के बारे में जो बैन हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ दिए। तो इसके साथ ये लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं और साथ ही उन्होंने छोटा सा एक गेट टुगेदर होते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। शेखुपुरा डीएसपी ट्रैफिक पुलिस शौकत अली जोया ने कहा है कि ट्रैफिक अमूर को मौसर बनाने की खातिर मरबूत लाया अमल मुरतब किया है। रोड्स पर ड्यूटी देने वाले अहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मज़ीद मदद मिल सके। रोड यूजर्स को ट्रैफिक कवानीन से आगाही फ्राहम करने की खातिर भी हम सरगर्म अमल हैं, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत न बरती जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। शौकत अली जोया ने कहा कि शेखुपुरा में जहाँ जहाँ ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है वहाँ ट्रैफिक अहलकारों की ट्रैफिक कंट्रोल करने की हिकमत अमली भी नहायत मजबूत है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक फाल है और किसी जगह ट्रैफिक जाम की शिकायत नहीं मौसूल हुई। ताहम रोड यूजर्स को भी अपना ताउन हर हाल में शामिल हाल रखना चाहिए ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और हादसात की रोकथाम की सूरत में इंसानी जानों का मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। शेखुपुरा मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा रवादारी को फ़रोग़ दिया है। क़याम अमन हमारी हमेशा अवलीन तरजीह रही है। दहशतगर्दी और बदअमनी के खात्मे की जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आज खित्ते समेत दुनिया भर में कायम अमन पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है। इस्लाम दीन फितरत है जो अमन का दाई और इंसानियत की फलाह व बहबूद का दर्स देता है, और इसी दर्स को सामने रखते हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने आला इंसानी इक़दार को फ़रोग़ देने समेत तमाम ममालिक से मुअस्सर ताल्लुकात को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटमी जोहरी प्रोग्राम मुल्की सलामती और कौमी बका की ज़मानत है। इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कौम ने जो कुर्बानियां दी हैं वो तारीख का हिस्सा हैं। कौमी और सियासी अस्करी क़यादत ने एटमी जोहरी प्रोग्राम के हसूल के लिए नाकाबिले फरामोश जिद्दोजहद की है। एटमी प्रोग्राम को सबोताज करने की सोच रखने वाले मुल्क व कौम के खैरख्वाह नहीं। शेखुपुरा मिनिस्टर डिजास्टर एंड मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सदर असलम खान शेरवानी की अपनी टीम के हमरा एक अहम मुलाकात, जिसमें शहर की तरक्की और सफाई के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू और अशरे ज़कात के चेयरमैन की सिलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में विमेन विंग सदर जमीला जंजुआ, जनरल सेक्रेटरी इंसाफ वेलफेयर विंग डिस्ट्रिक्ट खुरम काहलू, फाइनेंस सेक्रेटरी एहसान मिर्जा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमाद खान तरीन और जनरल सेक्रेटरी जुबैर खान ने जनरल सेक्रेटरी विमेन विंग फौजिया जावेद के साथ शिरकत की। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह साहिब की हिदायत पर पुलिस सर्कल फिरोजवाला का 3 दिनों में 700 क्रिमिनल्स के घरों पर रेड, 30 अफराद को गिरफ्तार करके उनसे इंटरोगेशन जारी, जबकि बकाया अफराद के क्वाइफ इकट्ठे करके उनकी निगरानी जारी है। दौरान सर्च ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद से भारी मिकदार में असलहा मनशियात जिसमें 3 क्लाशनकोफ, 4 अदद पिस्टल, 11 किलोग्राम चर्स, 40 लीटर शराब शामिल है बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुताबिक कानून कार्रवाई अमल में लाई गई। खुसूसी सर्च ऑपरेशन का मकसद क्राइम को कंट्रोल करना और साबिका रिकॉर्ड याफ्तगान की निगरानी करना है। इस मौका पर डीपीओ शेखुपुरा ने कहा कि या तो जराइम पेशा अफराद को क्राइम छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। मजीद बरां इस किस्म की कार्रवाइयाँ पूरे जिला में जारी रहेंगी। डीपीओ साहब शेखुपुरा जनाब एहसन सैफुल्लाह की हिदायत के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी सिलसिला में एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है, जिसमें इलाका थाना शरकपुर, फैक्ट्री एरिया और फिरोजवाला में तकरीबन 700 साबका क्रिमिनल्स जो कि एक्टिव क्रिमिनल्स हैं और जेल से रिहा होकर वारदातें कर रहे हैं, उनके घरों पे रेड किए गए हैं। तारीख में इतने दिनों में इतने ज़्यादा रेड कभी नहीं हुए होंगे। इसका मकसद क्राइम को कंट्रोल करना है और क्रिमिनल्स को लगाम देना है। इस सिलसिला में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में काफ़ी मिकदार में असला और मंशात बरामद की जा रही है।
ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि लोगों को महफूज रखा जा सके। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत समाजी, सियासी, मुआशी इनकलाब और इंसाफ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट निज़ाम के खिलाफ भी भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत बुनियादी अशियाई ज़रूरिया तक अवाम की रसाई को आसान बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया से लेकर इलाज, मुआवजे और सर छुपाने की सहूलतों समेत रोज़मर्रा की तमाम ज़रूरियात पूरा करने के लिए कलील मुद्दत और तवील मुद्दत सरीउल असर पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं, जिनके समर आवर होने के बाद मौजूदा नस्ल तरक्की और खुशहाली के सम्राट आइंदा नस्लों को मुंतकिल करने की बेहतरीन हालत में होगी। वज़ीर आज़म अपने अज़्म को जमा रखे हुए हैं और कौम की उम्मीद टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क के अवाम की तकदीर बदलने के लिए कोशा है। आज सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि अब नौकरियां नहीं बिकती और ना ही अपनों को नवाजा जाता है, बल्कि पीटीआई ने खुद गर्जों और नाम नेहाद मफाद परस्तों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब लोगों के काम पैसों और सिफारिशों के बलबूते पर नहीं, बल्कि शफाफ निज़ाम और मेरिट की बालादस्ती के तहत होते हैं। शेखुपुरा प्रेस क्लब शेखुपुरा के सदर मुबशर हसन भट्ट और जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद उस्मान ने कहा है कि हुक्मरान सहाफत का गला दबाना चाहते हैं। सहाफत रियासत का चौथा सतून है, जिसकी अहमियत पसे पुश्त डाली नहीं जा सकती। सहाफी बरादरी के खिलाफ पास किया गया हुकूमती बिल हम मुस्तरद करते हैं। ये बिल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसे हुकूमत को वापस लेना होगा। सहाफियों को दीवार से लगाने की हुकूमती पॉलिसी काबिले मुज़म्मत है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर सहाफी बरादरी की तरफ से किए जाने वाले एहतजाज के शुरा से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर जावेद मिराज, अजीम अहमद यज़दानी, शेख अजीम अली, नदीम सादिक गोराइया, सैयद अली मौज़म रिजवी, साहिबजादा रियाज अकबर मासूमी, कमरुद्दीन कादरी समेत दीगर ओहदेदारान और अरकान प्रेस क्लब मौजूद थे। मुबशर हसन भट्ट और राना मोहम्मद उस्मान ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी मुत्तहिद है और ऐसे किसी काले कानून को तस्लीम नहीं करेगी जिससे आज़ादी सहाफ़त पर ज़र्ब लगती हो। अहले सहाफ़त ने हमेशा अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की और न सिर्फ हुकूमती गलतियों और अवामी महरूमियों को उजागर किया, बल्कि हुकूमती मुअस्सर इक़दामात और अवामी खिदमत के अमूर को भी अवाम के सामने रखा है। हुक्मरानों ने जिस अंदाज में सहाफ़त मुखालिफ बिल की सूरत में सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल करने का इक़दाम उठाया है, वो काबिले मुज़म्मत है और इसके कलअदम होने तक सहाफ़ी बरादरी का ये पुरअमन असूली एहतजाज जारी रहेगा। खेल से प्यार, मनशियात से इनकार। रिपोर्ट शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे चाकिर सदीक बलोच से, जहां पंजगोर में दूसरा ऑल पंजगोर जश्न वश मोबाइल टाइटल कंबाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का फाइनल मैच यंग गुलजार क्लब वशपोत और खुदाबादान इत्तेहाद के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट की जेरे निगरानी बलोच वरना क्लब खुदाबादान कर रहे थे और टूर्नामेंट के ऑनर अताउल्लाह बलोच थे। यंग गुलजार क्लब वशपोत और खुदाबादान इत्तेहाद के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। फुटबॉल ग्राउंड के स्टेडियम शायकीन फुटबॉलर से खचाखच भरा हुआ था। यंग गुलजार क्लब वशपोत और खुदाबादान इत्तेहाद के दरमियान दिलचस्प और कांटेदार खेल का मुजाहरा किया गया। खेल के पहले हाफ में यंग गुलजार क्लब वशपोत एक गोल बनाने में कामयाब रहे। शायकीन फुटबॉलर्स मैच से महसूस हुए। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। यंग गुलजार क्लब वशपोत ने खुदाबादान इत्तेहाद क्लब को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल की ट्रॉफी को अपने नाम पे कर लिया। जिस तरह साल 2021 में यंग गुलजार क्लब वशपोत चैंपियन करार पाए, मैच के मेहमान खास BNP अवामी के जिलाई सदर निसार अहमद काशानी थे। उनके हमरा पार्टी के सीनियर नायब सदर हाजी रहमतुल्लाह, ज्वाइंट सेक्रेटरी उमर जान काशाना, सीनियर रहनुमा कादिर दाद, अब्दुल रहमान, वसीम अशरफ, हबीब काशानी, अदनान काशानी, उमर जान, नदीम बलोच और बलोच वरना क्लब के मैनेजर वजीर प्यारे नईम बलोच थे।
निसार अहमद ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 1 लाख रुपए नकद, विनर टीम के लिए 10,000 और रनर टीम के लिए 5,000 का ऐलान कर दिया। कमेंटेटरी के फराइज बरकत शरीफ, आसिफ फताह और शमसुद्दीन शम्स ने सरअंजाम दिए। रायविंड शहर में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म। रायविंड हयात टाउन के रिहायशी हसन नामी मजदूर की मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी हुई थी कि नामालूम चोर वायर लॉक काट कर चोरी करके फरार हो गए। रायविंड घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की सीसीटीवी फुटेज और न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम चोर बआसानी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार होने में कामयाब हो जाता है। रायविंड शहर में आए रोज बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों से शहरी परेशान। रायविंड पुलिस इन चोरों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम। मरी में मौसम ने ली अंगड़ाई, तेज हवाओं के साथ बारिश और चालाबारी जारी। सियाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मलका कौसार के मौसम ने ली हुई अंगड़ाई। गुज़िश्ता 4 दिन से जारी गर्मी का जो ज़ोर था बिलाखिर आज टूट ही गया। इस वक्त मलका कौसार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी है। आपको बताते चले जो दिन है वो रात में तब्दील हो चुका है। इस वक्त काली घटाओं ने मलका कौसार को अपनी लपेट में ले रखा है। वीकेंड डे शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट की आमद का सिलसिला जारी है। जब टूरिस्ट मलका कौसार में पहुंचते हैं तो इन खूबसूरत मौसम को अपने कैमरे की आंख में महफूज करते हैं और वीडियोस बनाते हैं और दूसरे दोस्तों तक ये तस्वीर और वीडियोस शेयर करते हैं। आपको बताते चले जो मुकामी लोग हैं उन्होंने गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर लिए हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है। नदी नालों में इस वक्त तुग़यानी का समा है। जी।